हमने पहले पेडिसिलेट फ्लावर्स के साथ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस किया था. पेडिसिलेट फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर दीज फ्लावर्स गाइस? What are pedicellate flowers? I can't hear anyone. Flowers with pedicel is known as The pedicellate flowers flowers. with the stalk, with the With the prominent stalk stalk present is in called the as stalk. exactly. And on the stalk, the flowers are either arranged like in a array. मतलब कैसे होता है कि एक ही स्टॉक पे एक ही फ्लावर ग्रो होगा बिकॉज वो उसके इंडिविजुअल फ्लावर का स्टॉक है. करेक्ट. द पेडिसल इज कंसिडर्ड टू बी द स्टॉक ऑफ द फ्लावर. देन व्हाट इज पेडंकल इज कंसिडर्ड टू बी? What is peduncle is considered to be? The stem. Peduncle is considered to be the stalk or the stem on which all the flowers are arranged. मतलब it is an axis जिसपे सिर्फ और सिर्फ flowers arranged है और कोई भी part arranged नहीं है उसपे. Yes, of course, leaves, bracts ये सब रहेंगे, but exclusively सिर्फ flowers arranged है. ठीक है? तो हमने racemose with pedicellate flowers के साथ किया था. Which are the types? Tell me. Yes. Which are the types with pedicellate Raceme, flowers? panicle, Raceme, corymbs, panicle, umbel. One by one. Arusha, Harshit, Simran, Siddhi, Ibrahim. Come on, Shreya Yadav, Shreya Valvalkar. सब लोग answers दीजिए please. Zeel, I want everyone to give me the answer. Yes. The types of racemose inflorescence with pedicellate flowers. Mr. Raceme, panicle, corymb, and umbel. Okay. Raceme में हमने क्या पढ़ा था? Quickly, just a quick revision The कर रहे हैं. flowers are arranged in acropetal succession. Acropetal succession. Okay, acropetal succession. Okay. Raceme is like a simple raceme जहाँ पे flowers are arranged in acropetal succession. Examples क्या दिया था मैंने? Radish, Radish and Rotalaria. Rotalaria. All right. Panicle. What is panicle? Compound raceme is known as panicle. मतलब it has branches. Raceme of उसके raceme. ऊपर रहता है वो. Okay. तो मतलब और main उस पे axis. Yes. Of course. Yes. Main axis is divided into many branches, and these branches, on top of the branches, the flowers are produced. But basically, you will see a raceme. Sorry, not on top of the branches, but you will see the raceme kind of arrangement, that is acropetal kind of succession on the branches of the peduncle. राइट मतलब जो चीज आपको पेडंकल में दिख रही थी अब आपको उसके ब्रांचेस में दिखाई देंगी. और इसके लिए मैंने आपको क्या एग्जांपल्स दिए थे? Mangifera, right? You can add one more example in that. Delonix. Everyone? Delonix. Bracket Gulmohar. Bracket Gulmohar. All right. Next. Corymb. Yes, Kiran, tell me about the corymb. In corymb, all the flowers come up to the same level, and the older flowers come from bottom, like from the bottom of near the bottom of the stem, and the younger flowers come from the axil. Very good. मतलब basically flowers सारे pedicellate होते हैं, but the only thing is that guys, just a second. Yes, flowers सारे pedicellate flowers होते हैं, stalked flowers, but the only thing is that all the flowers के सारे stalks एक साथ एक ही level पे आ जाते हैं, right? What is an example that I've given for simple corymb? Cassia and Caesalpinia. Cassia and Caesalpinia. Add two more examples: Iberis and cherry. Iberis, Iberis, and cherry. Cherry blossom. Everyone knows Japan ka national flower here. So that flower has also been arranged in a fashion of corymb. Compound corymb क्या है? Ibrahim, compound corymb क्या है बेटा? And corymb भी तो corymb के जो branches होते हैं उससे और निकलते हैं. Exactly. So basically, when the corymb is branched,
and when the same type of arrangement is seen on the branches, wherein the branches पे जो flowers आते they are reaching to the same height, that is called as compound corymbs. Example क्या दिया था मैंने? Cauliflower. Remember, cauliflower is not a flower, it is an entire inflorescence. याद है ना मैंने बताया था, it is an entire inflorescence. Okay, next, quickly, fast. And then we had umbel. Umbel. Okay, umbel में क्या पढ़ा था आपने? The flowers seem to arise from the same point. So, yeah. Now. Okay, Arusha, can you tell me what is umbel? Miss, the flowers they arise from the same peduncle, Yes, and there is and one. then there are bracts arising from that. Exactly, there are clusters of bracts which are present on that common point. Am I right? What is Yes, that ma'am, at the cluster of base. bracts called? Yes, what is that cluster? Involucre. Shreya Yadav? Involucre. Involucre. Yes, involucre. Best example of simple umbel that I have given it to you. Flowers of Flowers of onion, that is Allium cepa. You can one more add the example Centella. Centella asiatica, जो runner में हमने पढ़ा था. Centella asiatica. Centella के flowers भी umbel के form में रहते हैं. Okay, next, compound umbel कौन बताएगा? Some other person, please. Komal, not you, bacha. Some other person, please. I need everyone to communicate with me. पेडंकल के भी ब्रांचेस होते हैं, वो ब्रांचेस के अनवॉलिकर पे क्लस्टर पे एक ही पॉइंट से फ्लावर्स आते हैं. Yes, so basically it is a branched umbel wherein the umbel it's a branched umbel. So मतलब peduncle is producing many branch और आपको each branch पे typical umbel type के arrangements दिखाई देंगे wherein all the stalk flowers are arising from the tip of the peduncle, right? Branches के उसमें से, and the branches are called ray and the flowers are called as umbellate flowers, right? What example have I given to you? Coriander. You know, coriander belongs to a family called Apiaceae और उस फैमिली का हमने स्पेशली नाम रखा है अम्बलीफेरे. ओके, उस फैमिली में फेनल भी आता है और क्यूमिन भी आता है. सो यस, add two more examples in your compound umbel, fennel and cumin. Coriander आपने डाला ही है, fennel and cumin. Fennel, cumin and umbel, they all three fall under the family called Umbelliferae. याद है ना, फैमिली होता है तो सफिक्स क्या लिखना रहता है? EAE. Umbelliferae. Umbelliferae. ERAE. लास्ट में आएगा ERAE. Okay, so this is a family called Umbelliferae. Just because of the typical flower arrangement, हमने उनके family का नाम रखा है Umbelliferae. It's also called as Apiaceae. 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 Clear? All right. Next हमने क्या पढ़ा था बच्चा? Sessile flowers, right? Yes, miss. चलो स्क्रीन शेयर करके स्टडी कर लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर. ओके, ससाइल फ्लावर्स. ससाइल फ्लावर्स में हमने क्या स्टडी किया था? आई एम नॉट शोइंग यू द स्लाइड बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. हमने स्पाइक स्टडी किया था पहला वाला, याद है? दिस इज एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ द ससाइल फ्लावर्स ऑन द पेडंकल. और एग्जाम्पल मैंने दिया था एकाइनैंथस. यू कैन ऐड टू मोर एग्जाम्पल्स, एडाथोडा एंड बॉटल ब्रश. Adathoda and bottle brush are the two more examples. Adathoda and bottle brush. Okay, beautiful bottle brush. You're going to see this during the pollination ke topic mein. Okay, now spike can be a spikelet. Matlab spike ka there is one more type called spikelet. Very small spikes, मतलब spikes के जैसे ही arrangement है लेकिन बहुत ही छोटे spikes होते हैं with one or few flowers. And this is a characteristic feature of Gramineae family. Gramineae यानी कि सारे monocots, यानी कि सारे crops के family, wheat, grass, बाजरा, जवार, इन सब का जो arrangement होता है flowers का on top of the peduncle,
that is like a spikelet. Okay, all these are sessile flowers, इनको stock नहीं होता, and सारे जो flowers होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, and hardly one or few flowers are produced, not so many flowers as you can see in Achairanthus. Achairanthus का image मैंने दिखाया है, जिस उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे flowers arranged है, लेकिन spikelet के केस में it's hardly 1 or 2 or max to max 3 flowers, and all these flowers are covered with a proper bract. Okay, जो जो later on वही bract, guys are you listening, जो later on वही bract उसका covering बन जाता है, that is husk. अगर आपको याद हो तो जब हम लोग wheat और rice ये सबको हम लोग निकालते तो वो husk के साथ बाहर निकलता है. So that husk, the covering of the seed, is actually nothing but the bract which modifies it. Okay, तो ये spikelet है, and it is a beautiful characteristic of grasses and wheat. Basically Gramineae family को Gramineae family का ये characteristic feature है flowers का, spikelet. Okay, next हमने क्या study किया था? Spadix. This was one of my favorite. Yeah, Spadix. Now Spadix में हमने देखा कि sessile flowers होते हैं, unisexual flowers. मतलब female flower नीचे होता है at the top, sorry, at the bottom, and ऊपर के portion पे, that is proper ऊपर के portion पे spadix पे male flowers होते हैं, and the male and female flowers are separated by the neutral flowers, right? And this entire cluster of flower is covered with a colorful bract which is called Faith. spathe. Exactly. This is a characteristic feature of monocots. It is characteristically found in the monocots. Okay, मैंने example कई सारे दिए थे आपको, Musa, that is banana, cocoa, colocasia, alocasia, etc. Banana तो obviously, how can we forget? It's one of the best representative for the Spadix. All right, everyone, आगे चलो, मतलब मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ, so that is much better. नानी को बोलो. The third one is catkin. क्या कहा था मैंने? It is just like a spike, but it is a pendulous spike. याद है? And it has a drooping leaf axis, which bears a unisexual flower. Example मैंने दिया था Morus, that is mulberry, oak, birch, populus. All these are the other examples. So please add on all the other examples as well. You have to remember at least 2 to 3 examples, because आपको option choose करने में फिर easy हो जाएगा. Morus alba is mulberry, oak, birch, populus are all the other examples. Done? Okay. Last but not the least, हमने head या फिर capitulum करा था. ये बहुत ही beautiful था, जिसमें peduncle का जो tip है, that is the tip of the peduncle, which is called a septicle, that becomes flat like a disc, right? And head बन जाता है, मतलब वो basically head बन जाता है, और उसी head के ऊपर flowers जो है वो बहुत अच्छी तरीके से arrange होते हैं. There are 2 layers of flowers that we are seeing it. One is ray florets and one is disc florets. Ray florets are to the outer surface, that is peripheral florets, which are purely female flowers, right? And they have a proper corolla. और अंदर के जो disc florets है, these are bisexual flowers wherein the corolla is reduced and it forms a covering of the ovary. Am I right? यही बताया था मैंने. And bisexual है तो corolla के ठीक वहीं पर ही, sorry, disc florets के stigma के वहीं पर ही anther भी present है. And the anthers are dark brown in color, और इसीलिए हमें sunflower का जो center part होता है वो काफी dark brown color का दिखाई देता है. Best example, sunflower, tridax, or you can say members of Asteraceae family. Okay, compositae, उसको compositae कहते हैं. Asteraceae, compositae. Okay, ये Asteraceae family का सबसे beautiful characteristic रहा है flowers का. Okay, तो देखा आपने इनफ्लोरेसेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हर एक फैमिली के लिए सूटेबल है, मतलब फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द इनफ्लोरेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक. प्लांट में हम जब फैमिलीज डिस्क्राइब करते हैं बच्चा लोग, वी डिस्क्राइब द फैमिलीज मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस. हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इनफ्लोरेसेंस डिस्कस करना, फिर फ्लावर्स डिस्कस करना, एंड देन आफ्टर दैट रूट एंड स्टेम डिस्कस करना. आर यू गेटिंग इट? वी ऑलवेज डिस्क्राइब द फैमिली विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनफ्लोरेसेंस.
right? तो चलो, let's see today chimose inflorescence. Are you guys ready? Ready बच्चा लोग? Today we will be Yes. studying chimose inflorescence. Okay. चलो. First is solitary kind. आज के lecture में please ध्यान देना. Today the lecture is very important and you need to take down lot of things. Okay. Solitary का मतलब होता है wherein there is only a single flower. Okay. Only single flower is present on top of the peduncle. मतलब peduncle के टिप पे याद रखना chimose का meaning क्या है. सबसे पहले तो before we discuss any type of the chimose inflorescence, tell me the meaning of chimose inflorescence. What is the meaning of chimose inflorescence? The flowers are arranged in the basipetal succession. The flowers are arranged in a basipetal succession. What is the meaning of Main basipetal? axis turns into flower. Yes, the main axis terminate into the flowers. Yes, yes, yes. और basipetal का मतलब क्या बताया था मैंने? Old flowers. Older flowers are at the top. Older flowers are at the terminal and younger flowers are at the bottom of the peduncle, at the base of the peduncle. Very good, very good. ये point दिमाग में रखना और फिर chimose study करना. Every time chimose के types में ये point याद रखना. Okay, basipetal succession. The very first type is solitary. Solitary में तो हमें कोई succession देखने की जरूरत नहीं है because यहाँ पे single flower present है and that too at the terminal end of the peduncle. Alright. अगर terminal end पे है, सुनो, there are two types. अगर terminal end पे है, example datura, that is terminal chyme, and अगर axillary chyme है, that is in the axils of the leaves, then it is hibiscus. I have shown hibiscus. Everyone, if it is at the terminal, अगर यहाँ पे फ्लावर आ जाता है टर्मिनल एंड पे तो ये हो जाता है टर्मिनल काइम, दैट इज दतूरा. एंड एक्सिलरी काइम कैसे होगा? एक्सिलरी काइम मींस इन द एक्सिल्स ऑफ द लीफ, मतलब यहाँ पर वो फ्लावर एंड होता है. ओके, हियर ओनली द बड इज प्रेजेंट बट हियर द फ्लावर इज एंडिंग, दैट इज एक्सिलरी काइम. हिबिस्कस in the axils of the leaf. Very clear, everyone? Yes. Yes, miss. Okay. Next, simple chyme. Simple chyme, or I can say chymule. I can also say chymule. 3-flowered chimose inflorescence. 3-flowered chimose inflorescence. 3-flowered. Compulsory 3 flowers होंगे. And each flower is called as chymule. Each flower is called as chymule. C-Y-M-U-L-E. Check out this. 3 flowers. Can you see the prominent 3 flowers? Yes, miss. 1, 2, and 3. And these 3 flowers are covered with the whorls of, or they are surrounded with the whorls of colorful bract. बच्चा लोग, ये पेटल्स नहीं है, ये कलरफुल ब्रैक्ट है ताकि वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके. ऑलराइट. बोगेनविला, जैस्मिन. मैंने यहाँ पे जो इमेज दिखाया है वो बोगेनविला का है. बोगेनविला कंपल्सरी 3-flowered chimose arrangement दिखाता है, where there are 3 small chymule flowers produced at the tip of the peduncle. Is that clear? तो suppose अगर मैंने आपसे question पूछा, okay, everyone finish with the writing? Okay. Yes, miss. Okay, okay. I want to discuss a question. Just एक दिमाग में question आया मेरे कि suppose there are 34 inflorescence. Okay, there are 34 inflorescence of bougainvillea. Of bougainvillea. Can you tell me the number of flowers? अगर 34 inflorescence है bougainvillea के तो total number of flowers कितने होंगे? Anyone? 102. 102. 102.
Exactly. 34 into 3. 102. Each inflorescence compulsory has 3. So 34 into 3, that is equal to 102 flowers. All right. हमेशा याद रखना, अगर उन्होंने बोगनविला के फ्लावर्स पूछे तो आपको सीधा into 3 कर देना है. ओके, बिकॉज इट इज मैंडेटरी कि वो 3 फ्लावर्स ही बने, इसलिए उसको 3 फ्लावर काइमोस कहते हैं. इसलिए उसको 3 फ्लावर काइमोस कहते हैं. ठीक है बच्चा लोग, डैड? ओके, ये 2 टाइप समझ में आ गया. सो नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड विद दी अनदर टाइप. काइमोस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान रखना. नाउ द अदर टाइप इज when the peduncle is branched. When the peduncle, the main peduncle is branched, chymos type is divided on the number of branches. ठीक है, chymos का जो type है ना, that is divided on the basis of number of branches. पहला, first type, monochasial chyme. Monochasial chyme. Break the word. Mono यानी कि one and chasial यानी कि branch. यानी कि the main axis ends in the flower. Guys, please listen. Main axis जो है, that will end in the flower and it produce only one branch from its basal bract. And वो branch भी end करेगा flowers में. Are you listening? Are you listening? Yes, miss. Main axis जो है वो तो टर्मिनेट होगा फ्लावर में बिकॉज इट इज अ काइमोस. अब उसके बेसल पार्ट से जहां पे ब्रैक्ट है वहां से भी ब्रांच निकलेगा. इवन दिस विल ऑल्सो टर्मिनेट इनटू फ्लावर. अब यहां से जो ब्रांच निकलेगा इसके बेसल ब्रैक्ट से, वो भी टर्मिनेट होगा इनटू द फ्लावर. अब यहां से जो ब्रांच निकलेगा ये भी ब्रैक्ट से निकलेगा. दिस विल ऑल्सो टर्मिनेट इनटू द फ्लावर. कंपल्सरी इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सिंगल ब्रांच. Now that can be, अब यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैंने एक ही डायरेक्शन में ब्रांच बनाया. Did you see that? Did you see that? So now in monochasial I have 2 options. एक, अगर successive branch are developed on one side, then that is called helicoid chyme, जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है. This is helicoid chyme. Are you listening? All of you? Example, Yes. Hemilia, Solanum, Begonia. Look at this beautiful flower of Hemilia. All the flowers are at the one axis. मतलब देखो, all the flowers are produced on the branch where the branches are produced only at the one side. जिससे कि मेन एक्सिस कर्व्ड हो गया है. ये देखो, ये मेन एक्सिस कर्व्ड हो गया है. जैसे मैंने कैसे कर्व ड्रॉ किया, ये देखिए, वैसे यहाँ पे भी ये मेन एक्सिस कर्व्ड में दिख रहा है. कैन यू सी दैट? एंड if you can see this image very clearly, the old flowers are at the top and here are the young flowers. Isn't that beautiful? Yes. This is helicoid. उसका डायग्राम मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है. अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ. I'll just draw the diagram over this side. Everyone, the main stem, flower, from the axil or from the bract, another branch terminate into flower. From the bract, another branch terminate into the flower. From the bract, another branch terminate into the flower. From the branch, another flower terminate. Yes, see this, a beautiful helicoid representation. The axis is curved. The axis is curved. Can you see that? And it is on one side. One side branches. Only one branch, and that too at one side, helicoid. Only one branch on both the side, scorpioid. Only one branch, but on either side in a zigzag manner, scorpioid. Zigzag. Heliotropium. Beautiful heliotropium का मैंने इमेज दिखाया है. And ranunculus. Ranunculus. Okay.
तो अगर आपको स्कॉर्पियो ड्रॉ करना हो तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? इट इज वेरी सिंपल, राइट? आप यहाँ पे एक पेडिंकल बनाओगे, यू विल टर्मिनेट दिस विद द फ्लावर, you draw this side from the bract, terminate into the flower, then another branch arises from here, from the bract, terminate into the flower, another bract, terminate into the flower, from the bract, another branch from the bract, terminate into the flower. Look at the scorpioid arrangement. It's in a proper zigzag manner. Can you see that, guys? Yes. यस मिस। मिस हाँ बेटा, मिस मतलब ये एक ही साइड से बट जिगजैग में। नहीं बच्चा, दोनों साइड है दीक्षा, दोनों साइड है ना. हाँ. सी दिस इज वन साइड. ओके, आई जस्ट टेक एन अनदर कलर. दीक्षा, दिस इज वन साइड एंड दिस इज अनदर साइड ना. फिर देखो वापस से नहीं, ओल्ड फ्लावर के। नहीं समझी मैं दीक्षा, आप क्या पूछ रहे हो? मिस जो ओल्ड फ्लावर है ना, ओल्ड फ्लावर्स उसके नीचे एक होते ही हैं. side- ओल्ड फ्लावर्स नीचे होते हैं. ओके तो आइडियली मुझे यहाँ पे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ करने. हाँ, तो ये हो जाता है यंग फ्लावर्स और ये हो जाते हैं ओल्ड फ्लावर्स. बेसी पिटल है ना बेटा? नहीं, ओके मैम। यस गलत कर दिया मैंने. पिटल हो गया था। ओल्ड फ्लावर्स ऊपर होते हैं दीक्षा. हाँ मिस। हाँ, ओल्ड फ्लावर्स ऊपर होते हैं, यंग फ्लावर्स नीचे होते हैं. इट्स बेसिक पिटल ना बेटा, बेसिक पिटल. ये देखो ना, यस ये दीक्षा लुक 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 एट दिस. ये देखो यहाँ पे ये फ्लावर्स ओपन हुए हैं. सी, दीज आर ओल्ड फ्लावर्स. देखो अच्छे से ओपन हुए हैं. और यहाँ पे देखो ये बड्स है. कैन यू सी दैट? अभी भी ये Yes, बड फॉर्म ma'am. में, ये अभी तक ओपन नहीं हुए हैं. वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ओल्ड फ्लावर्स ऊपर रहेंगे दीक्षा एंड यंग फ्लावर्स नीचे रहेंगे. ठीक है, परफेक्ट. वैसे ही है, Okay, काइम ma'am. जैसा होता है वैसे ही है. काइमोस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वही है, बेसिक पिटल. ओके मैम। ओके, जिगजैग मैनर याद रखना. स्कॉर्पियोइड गाइस. I'm sorry. यहाँ पे भी old flowers at the top and young flowers over here. Am I very clear with this? Monochasial, helicoid and scorpioid. Yes. मिस हमें एग्जांपल्स आएगा तो फिर हमें इसके स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर से डिफरेंशिएट करना है कि फिर वो मोनोचेजियल के अंदर ही लिखना? अगर आपसे मोनोचेजियल के बारे में पूछा है, क्वेश्चन पढ़ना हीर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि अगर मोनोचेजियल के बारे में पूछा है तो हम दोनों में से हेलिकॉइड, स्कॉर्पियोइड, जो भी उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा एग्जांपल, हम उसमें से चूज करेंगे. लेकिन अगर स्पेसिफाई किया है वेदर इट इज मोनोकॉइड, हेलिकॉइड और मोनोचेजियल हेलिकॉइड और मोनोचेजियल स्कॉर्पियोइड, तो हमें अकॉर्डिंगली वैसे चूज करना पड़ेगा. ओके मिस. हाँ, एंड रिमेंबर, मैं ये जो हाथ से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ना, दिस दे आस्क इन डायग्राम कि मतलब सपोज अगर डायग्राम दिया तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एंड आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड उसका मैचिंग, उसका एग्जांपल ढूंढ के निकालना है. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो. डोंट वरी, इसलिए मैं बोल रही हूँ एवरी संडे टू संडे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले अभी क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा है. चलो गाइस, डन. मोनोचेजियल एकदम क्लियर हुआ ना बच्चा लोग? आगे बढ़ू. ओके. यस मिस. Dichasial. This is one of my favorite. Dichasial. Main axis जो है ना, main axis, it will terminate in. देखो main axis तो flower में terminate होगा. क्यों? It's a chimos. It's a chimos. Exactly. Chimos की property है वो. But now over here at the base of the peduncle, two lateral branches are produced. Monochasial में कितना था? 1. अब यहाँ पे 2 lateral branches, इसीलिए हम इसको डाइचेजियल कहते हैं.
डाई का मतलब होता है 2, and both these branches will end with the flower. Okay, both these branches will end with the flower. तो सपोज अगर मुझे ड्रॉ करना है, मेन एक्सिस, main axis, producing lateral branch, producing lateral branch. Okay, main axis is terminating into the flower, which is an old flower. बराबर है. नाउ जो इसके ब्रांचेस है वो भी टर्मिनेट होंगे इनटू द फ्लावर्स. नाउ सी, even the branches is producing another lateral branch from the base of the bract. Can you see that? Even the branches are producing another branches from the base of the bract. These are the bracts. And now इसके ऊपर भी flowers grow होंगे. All right, Ma'am, 1 minute. 1 minute. Heer, Hiral, Hiya, Jeel, Kiran. सिद्धि, वीडियो ऑन करो सब लोग. हीर, किरण, हीर, Guys, I've drawn the diagram. Here, video on कर बच्चा. हाँ मिस किया. Okay, हाँ. Okay, guys, look at this. The very first flower, जो yellow color का मैंने, I've just drawn it hypothetically. Huh? It's a diagrammatic. It's a diagram structure. आपको arrangement समझाने के लिए. जो yellow color का flower draw किया है, that will be the first flower to open. तो मतलब वो old होगा. Now see, this is a main axis. This is the main axis. Now main axis is producing 2 branches, lateral branches. And वो lateral branch भी terminate हो रहा है flower पे. That is red color का flower. तो which is going to open after yellow color का flower. Are you understanding? It is going to open after yellow का after yellow color के flower. Yellow flower के बाद वो red color का flower open होगा. And now that branch, okay, the branch is producing another 2 lateral branches from the base of the bract that is also terminating into the flowers. That is blue color का flowers जो नंबर 3 पे है. मतलब फर्स्ट फ्लावर कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर येलो, उसके बाद रेड, एंड उसके बाद सबसे यंग फ्लावर्स कौन से? ब्लू कलर के. सो नंबरिंग इज डन on the basis of the opening of the flowers. The numbering of the flowers over here I have done to make it easy for you to understand कि कौन सा फ्लावर पहले ओपन हो रहा है, कौन सा फ्लावर बाद में ओपन हो रहा है, यानी कि कौन सा फ्लावर ओल्ड है और कौन सा फ्लावर यंग है. तो जो 1 लिखा है वो ओल्डेस्ट है और जो 3 लिखा है वो यंग फ्लावर्स है. Are you understanding? Yes, miss. Yes, miss. Are you sure everyone? Now see, you must be surprised to see कि मैं यहाँ पे बोगनविला फिर से डाल रही हूँ. बोगनविला को मैंने एग्जाम्पल कहाँ दिया था? 3 flowered inflorescence में, काइम्यूल में, right? Yes, it is considered to be 3 flowered chymose inflorescence, and इसका जो arrangement है that is also falling under dichasial kind. All right, so bougainvillea is one of the common example over here for chymose inflorescence. Another examples are dianthus, jasmine, mirabilis, and epomia, that is sweet potato का flower. All right, ठीक है? Yes, miss. Polychasial. Guys, polychasial. मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करना प्लीज. आई एम ड्रॉइंग इट, प्लीज यू ऑल्सो ड्रॉ इट. पॉलीचेजियल में क्या होगा? अच्छा, नंबरिंग ध्यान से करना. हाँ, नंबरिंग ध्यान से करना है.
नंबरिंग कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा फ्लावर ओपन हो रहा है. यू ड्रॉ इट विद अ पेंसिल, देयर इज नो नीड टू यूज कलरफुल पेन लाइक व्हाट आई एम यूजिंग इट. ओके, ये हो गया आपका मेन एक्सिस. ठीक है, ये हो गया मेन एक्सिस. अब पॉलीचेजल का पहले मतलब समझते हैं. पॉलीचेजल का मतलब क्या होता है? पॉली यानी कि मेनी, राइट? So see, at the base of the peduncle, many lateral branches are produced and each are ending with the flower, right? तो इसके पैटर्न देखो कैसी है. पहले तो हम मेन एक्सिस के फ्लावर को टर्मिनेट कर देते हैं. ओके, आई एम नॉट ड्रॉइंग इट लाइक दिस. मैं सर्कल ड्रॉ करूं क्या? ऐसे ऐसे ऐसे. दिस विल इंडिकेट फ्लावर, चलेगा ना? दिस विल इंडिकेट फ्लावर. विल दैट बी ओके? Should I Yes. draw that goal? Yes. Okay, ball and stick diagram. Okay, I'm just drawing it. Okay, तो अभी यहां से ये देखिए, मैं ये ब्रांचेस प्रोड्यूस कर रही हूं. ये देखिए, या लुक एट दिस ब्रांचेस. ओके, अभी रुको रुको रुको, अभी तो कहाँ खत्म हुआ है? पॉली है ना, पॉली मैनी. अभी each this branch will terminate with the flowers. Okay, yellow. ओके, हमने पहले इनको टर्मिनेट कर दिया फ्लावर से. नाउ these branches are going to produce, these branches are again going to produce many branches. ये देखिए, can you see that? Guys, can you see this? Yes, miss. Yes. है ना? Okay. And there are bract of leaves. Sorry, there are bracts which are present at the base. Okay, सबको bract present है. ठीक है, यहाँ पे भी bract present है. Okay, now see how I'm ending with the color. Just be very careful with the color, please. ओपनिंग देखो इसका, ऑसम है. जितने भी रेड है ना, दे ऑल आर नंबर 3. वाओ, ब्यूटीफुल. येलो जो है वो नंबर 2 पे है. ओके, ग्रीन जो है दैट इज नंबर 1. And now I will be drawing blue color flowers. Those will be number 4. Wow. Look at this polychasia. Yes, I'm done. मैंने गड़बड़ तो नहीं की ना? 3 margin. All the 3s are outer side ना? Check करो. Check करो. All the 3s are on the outer side ना? हाँ Yes, miss. हाँ हाँ, सारे 3 आउटर साइड में. यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. लुक एट द ओपनिंग स्टाइल, इजंट दैट ब्यूटीफुल? जो फर्स्ट सेंटर वाला है वो सबसे ओल्डेस्ट है, 1. देन दी ईच ब्रांचेस का टर्मिनेटिंग फ्लावर्स विल बी सेकेंड पोजिशन. अब वो ईच ब्रांच का जो फर्स्ट लैटरल ब्रांच है, फर्स्ट 2 लैटरल ब्रांचेस है, वो थर्ड पोजिशन पे, एंड नेक्स्ट 2 लैटरल ब्रांचेस आर फोर्थ पोजिशन. और ऐसे सारे में होता है. Okay, so all the branches are ending up with the flowers. Yeah, example, Nerium, Calotropis, Croton. Beautiful. Is it done? Yes, miss. Yes, ma'am. जो फ्लावर्स है वो थर्ड के लेटरल ब्रांचेस में से प्रोड्यूस होंगे ना?
नहीं, ये सेकंड, हाँ, बट वो लेटर ऑन प्रोड्यूस हो रहे हैं, थोड़ा बाद में प्रोड्यूस हो रहे ब्रांचेस. Okay, miss. हाँ. मिस, हाँ बेटा, तो मतलब थर्ड एंड फोर्थ सेकंड से ही निकल रहे हैं, बस टाइमिंग का डिफरेंस है. फ्लावरिंग के ओपनिंग का डिफरेंस है. कितना खूबसूरत लगता है ना, सोचो. डन एवरीवन, मैं ये रब कर दूं? शुड आई रब दिस? Yes, miss. या फिर आप ऐसे इमेज देख लो, इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है. दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. एनीवन कैन गेस व्हिच इज दिस? इट्स जैस्मिन. It's jasmine, jasmine, dichasial, jasmine flower. This is a jasmine flower, okay? Dichasial. Every time it is producing two branch. Can you see that? Two lateral branches producing. ये इसका terminating flower है और दो branches उसने बनाए और दोनों branch पे भी देखो दो flowers grow रहे हैं, okay? And polychasial की तो मैं क्या बात करूं? Obviously, nerium. I should take nerium. Nerium. Look at this. Polychasial. Nerium flowers. Yeah, चलो. काइमोस हेड. ओ, सबको समझ में आ गया ना ब्रांचेस वाला सिस्टम? सो गाइस, वी सॉ peduncle when it is branched. So based on the number of branches, we saw monochasial, dichasial, and polychasial. All right. Now come to काइमोस हेड. कितने लोग को याद है कैपिट्यूलम? कितने लोग को याद है कैपिट्यूलम? सनफ्लावर हेड, कैपिट्यूलम. यू रिमेंबर? रेसिमोस का हेड कहते हैं उसको हम, रेसिमोस का हेड. बस इट इज जस्ट लाइक दैट. ये काइमोस का हेड है, वो रेसिमोस का हेड है और ये काइमोस का हेड है. सो मेनी ससाइल फ्लावर्स, सुनो सुनो, मेनी ससाइल फ्लावर्स, ससाइल नॉट द पेडिसिलेट वन, मेनी ससाइल फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन अ फ्लैट डिस्क. ओके, it's arranged on a flat disc of the like a peduncle. मतलब peduncle जो है, मेन एक्सिस जो है ना गाइस, जो मेन एक्सिस है ना, वो ऐसे फ्लैट हो जाता है ऐसा. एंड इस पे बहुत सारे ससाइल फ्लावर्स ऐसे गोलाकार में अरेंज होते हैं. तो आपको बॉल दिखता है, पॉम पॉम का बॉल होता है ना, पॉम पॉम का बॉल, वैसे बॉल दिखता है. यू सी अ बॉल ऑफ मेनी ससाइल फ्लावर्स, छोटी 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 ससाइल फ्लावर्स का बॉल दिखता है. एंड दैट बॉल इज attached to the flat disc of peduncle. Now, शायद मैं दिखाऊंगी तो अब समझेगा. कदम्ब फ्लावर, एंथोसेफेलस, इंडिया का ओरिजिनेट, बैट पॉलिनेशन करता है, ब्यूटीफुल. अलीबाग पूरा इसी से ही भरा पड़ा है, अलीबाग पूरा इसी से ही भरा पड़ा हुआ है. कदम्ब फ्लावर, एंथोसेफेलस. तो डायग्राम बना सकते हो एक बार? किस? अच्छा, हाँ हाँ, ये मैं बना सकती हूँ. यस यस, ऑफ कोर्स मैं बना सकती हूँ. जस्ट अ सेकेंड, मैं कलर ले लूं. जैसे कि कोमल, अगर हम डायग्राम बनाना चाहे तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि मैम, पेडंकल. हाँ बेटा बोलो. मिस ये सब फ्लावर्स है ना हाँ उसके जी ऊपर? हाँ जी हाँ ये जी, these are बर्ड्स नहीं है sessile ना? flowers. No, these are sessile flowers. All these white colors are sessile flowers. फुल फ्लावर्स है, बर्ड्स Yeah, नहीं. these are all, yeah, it's an inflorescence, Kiran. It's not a single flower. It's this entire, I know you guys are amazed with this. This entire is an inflorescence. Can you imagine this? ये पूरा एक inflorescence है. And there is a bunch of inflorescence which I've shown to you. यानी कि अभी आपको मैंने 3 inflorescence का पिक्चर दिखाया है यहाँ पे. लोगों को क्या लगता है, एक लेमैन लैंग्वेज, मतलब एक लेमैन इंसान को लगता है, एक नॉर्मल इंसान को लगता है कि ये 3 फ्लावर है. बट एक्चुअली ये 3 फ्लावर नहीं है, ये 3 फ्लावर का गुच्छा है. गुच्छा यानी कि बंच है. यस मिस, थैंक यू. या ओके. तो कोमल, अगर हम ये पेडंकल ऐसे बनाएं, ठीक है, तो इसको हम मेन एक्सिस लिख देते हैं, विच इज पेडंकल. ठीक है, तो इस पेडंकल को हम यहां पर ऐसे फ्लैट कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं. तो दिस बिकम्स योर फ्लैट रिसेप्टिकल.
बरोबर है। अब इस फ्लैट के ऊपर ना हम ये बॉल के स्ट्रक्चर को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रिसेप्टिकल का जो फ्लैट पार्ट है वो इस बॉल को होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसे और त्रास है। And like this. Yeah, perfect, perfect. And अभी इसके ऊपर छोटे छोटे white flowers है ना, है ना? Yeah. Yes, I tried to draw. I tried to draw it. I don't know how it is looking, but this is what I mean. This you can write down its entire inflorescence. हाँ, तो मतलब ये सारे white color के flowers हैं। I mean आपको जैसे ठीक लगे। श्रेया, मैम श्रेया Yes, ma'am. बेटा बराबर है ना? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना बच्चा? Yes, ma'am. जील, रुजाला आपने डीपीपी सबमिट नहीं किया है मैम आई सबमिटेड डीपीपी। बेटा, आपका मुझे नहीं दिख रहा है वहां पे बच्चा। डीपीपी सबमिशन में लेट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है? मैं हार्डली 25 क्वेश्चंस भेजती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इतना तो हमारा हक बनता ही है ना 90 के लिए, सॉल्विंग के टारगेट के लिए। हाँ स्वरा, स्वरा पिंपल प्लीज, आप भी लेट नहीं होना अभी से। मैम Yes. हाँ बच्चा, ये जो येलो वाले दिखने वाला स्ट्रक्चर है वो भी, these are buds। हाँ, एंड दे देखो ना, लाइक अगर तुम अटैच्ड ऑन अ बॉल काइंड ऑफ थिंग और no, these are attached on the flat receptacle. How will I show it? मेरे पास LS नहीं है। I didn't have the LS of this flower, otherwise दिखा दी होती। हाँ, मिस कॉटन का जो वैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें और no, no, उसमें no. कुछ है? Cotton are the fibers, like flower. उसका फ्लावर जो है ना, उसका फ्लावर ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाता है। मस्त जो पेटल्स है ना ऐसे ट्विस्ट में अरेंज्ड है। ट्विस्ट ट्विस्ट वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, भौरी भौरी, ट्विस्ट ट्विस्ट। साइक्लोन कैसे ट्विस्टेड होता है वैसे, तो वैसे वो भौरी की तरह वो फ्लावर उसके पेटल्स अरेंज्ड है कॉटन के। एंड कॉटन का फ्लावर के पॉलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद द फाइबर्स आर फॉर्म्ड, तो वो बन जाता है कॉटन बॉल। तो बेसिकली पेटल्स और सेपल्स, किरण, पेटल और सेपल्स रिड्यूस होके फाइबर बनता है। ओके मिस, वैसा बॉल बनता है। एंड दिस इज अ वाइल्ड फ्लावर, नो? सॉरी, दिस इज अ वाइल्ड फ्लावर। it is yeah, but it's a beautiful flower. It's bad pollinated. No one can think such a beautiful flower will be bad pollination, but yes, it's a bad pollination क्योंकि ये जब ये फ्लावर थोड़ा मैच्योर होता है रिदा, उसकी खुशबू इतनी खास नहीं होती है। एंड ये थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है ये येलो वाला पार्ट। या लेटर ऑन, वेरी लेटर, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद। हाँ हाँ, चलो डन। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी। मैंने रेसिमोस कंप्लीट कर दिया, मैंने काइमोस कंप्लीट कर दिया गाइस। रेसिमोस कंप्लीटेड, काइमोस कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू अ वेरी अनयूजुअल कैटेगरी जो आपके दिमाग को हिला देगा, दैट इज स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। ओके, सो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में आ रहा है फर्स्ट वन, काइथियम। ओके, अगेन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इन्फ्लोरेसेंस, काइथियम। सबसे पहले तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली यूफोरबिएसिए। यूफोरबिया कहीं तो सुना है आपने, कहीं तो आपने ये एग्जांपल लिखा हुआ। टर्न द पेजेस। मिस फाइलो, मिस फाइलोक्लैड, हाँ बेटा, फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड, क्लासिक। किरण, स्वैग, सुपर्ब। फाइलोक्लैड यानी कि किरण, हम कौन से प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं?
Xerophytic. एग्जैक्टली जेरोफाइटिक प्लांट्स. अब समझ में आया पूजा मैम का फेवरेट क्यों है. Okay, चलो. तो Kythium is a beautiful inflorescence which is of the family, characteristic feature of Euphorbiaceae family. यहां पर Achlymydius, एक एक चीज आपको नोट डाउन करनी है. Achlymydius का मतलब होता है नो सेपल्स, नो पेटल्स. लिखो, आप लिखोगे, मैं बता रही हूं आप लिखोगे. Achlymydius का मतलब होता है नो सेपल्स, नो पेटल्स. नो सेपल्स, नो पेटल्स. Achlymydius का मतलब होता है विदाउट सेपल्स एंड विदाउट पेटल्स. लिखा. ओके. पेडिसिलेट फ्लावर्स, ध्यान से सुनना. Pedicellate flowers. So Achlymydius, that means sepals and petals are absent. Pedicellate यानी कि स्टॉक के साथ. ट्राइकार्पलरी यानी कि 3 कार्पल्स प्रेजेंट है. 3 कार्पल्स. Tricarpellary, 3 carpels. The female flower is with the 3 carpel. The female flowers is with the 3 carpel. Carpel यानी कि ओवरी. अगर आपको कार्पल नहीं पता है, किसी ने पहली बार सुना है, तो याद रख, खाली इतना लिख दो, 3 ओवरी वाला फ्लावर. 3 ओवरी वाला फ्लावर. फिलहाल के लिए इतना लिखो, मैं बाद में समझाऊंगी जब फ्लावर आएगा अपना. ट्राइकार्पलरी. सिंकार्पस. सिंकार्पस का मतलब होता है ओवरीज आर फ्यूज विथ ईच अदर. ओवरीज आर फ्यूज. ओवरीज सेपरेटेड नहीं है, ओवरीज आपस में जॉइंट है. 3 ओवरीज आपस में जॉइंट है. सिंकार्पस, फीमेल फ्लावर. ट्राइकार्पलरी यानी कि 3 कार्पल, 3 स्टिग्मा वाला कार्पल. सिंकार्पस यानी कि फ्यूज्ड female flower, and this female flower is covered with, it is enclosed in a cup shaped involucre of branch. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कैसा होगा. This female flower is covered with cup shaped involucre of branch. Okay, okay. Now this female flower is surrounded by many Achlymydius, again no sepal, no petals, pedicellate with stalk, centrifugally arranged and scorpioid male flowers. Poinsettia. Poinsettia. Euphorbia pulcherrima. Euphorbia pulcherrima. क्रिसमस में लॉर्ड जीसस के सामने हम यही फ्लावर्स को ऑफर करते हैं. पॉइंसेटिया. इट्स कॉल्ड क्रिसमस स्टार कॉमनली, और इसके फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. दिस इज यूफोर्बिया, another species of euphorbia. Poinsettia is Euphorbia pulcherrima. यूफोर्बिया के दूसरे स्पीशीज का फ्लावर ऐसे दिखा है. और ये देखिए मैंने आपके लिए काइथियम और उसका एलएस स्ट्रक्चर यहां पे बना के दिखाया है. Everyone will pay attention on the screen. This is a Kythium, and this B वाला is LS of Kythium. मतलब उसको LS कट करके मैंने दिखाया है, just to make you understand कि इसका arrangement कैसा है. Everyone will pay attention on the screen. Can you see a long pedicel of the female flower? ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है. क्या हो गया बेटा, आप स्क्रीन को जूम नहीं कर सकते? नहीं मिस. अरे बाप रे, ऐसा है. ओके, रुक जाओ. Give me 1 minute. If the students are not able to see, give me 1 minute.
Okay. अब दिखाई दे रहे हैं? अब Yes, सबको sir. डायग्राम दिखाई दे रहा है? एवरीवन? Yes, miss. मैंने बड़ा कर दिया उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए. Okay, everyone, can you see this entire chythium? And this is the LS of chythium. Okay, chythium में female flower is having a long stalk. Can you see this long stalk, which is called pedicel, right? And ये female flower का ovary है. You can see the ovary is quite swollen, and this is a stigma of the female flower. Yeah. Now this female flower is covered with the involucre of the bract, जो कि मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ. फिलहाल आप LS समझ लो. अब जब फीमेल फ्लावर, मतलब फीमेल फ्लावर बेसिकली वो पेडेंकल के मेन स्टॉक में से निकलता है, पेडेंकल में से बाहर निकलता है. ओके, उसका लॉन्ग पेडिसिल होता है और वो ऐसे बाहर निकलता है. एंड इवन द फीमेल फ्लावर इज कवर्ड विद द इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट. एंड सराउंडिंग टू दैट पेडिसिल देयर आर मेनी मेल फ्लावर्स. कैन यू सी द मेल फ्लावर्स? ये देखो मेल फ्लावर्स जो सेंट्रीफ्यूगली अरेंज्ड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगली? सेंट्रीफ्यूगली का मतलब क्या होगा? Near center. एग्जैक्टली यानी कि मेच्योर मेल फ्लावर्स आर इन द सेंटर. ये दिख रहा है आपको बड़े बड़े स्टेमन वाले, ये मेच्योर फ्लावर्स है. और ये देखो ये यहाँ पर ये सारे यंग फ्लावर्स है. सी दीज आर यंग फ्लावर्स विच आर एट दी पेरीफेरी. दिखा आपको? यस. तो ये मेल फ्लावर्स अरेंज्ड है एंड इवन द मेल फ्लावर इज कवर्ड विद द इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट. ये देखो कप ऑफ इनवॉल्यूकर, कप ऑफ इनवॉल्यूकर. एवरीवन, मैं इमेज दिखाऊं अभी? Yes, miss. मैं अभी इमेज दिखाऊं तो शायद आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, आई एम शोइंग यू द इमेज नाउ. ये देखो, दिस इज द इनवॉल्यूकर ऑफ फीमेल. या और ये देखो फीमेल का स्टिग्मा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. स्टिग्मा, देयर आर 3 स्टिग्मास व्हिच यू कैन सी एंड यू कैन सी द स्टाइल आल्सो. कैन यू सी? And the ovary, and see the ovary is covered with the involucre of female, and this is a pedicel of the female. Now can you see this male flowers? ये देखो ये mature male flowers center में present है. Yeah, and that is also covered with the involucre. Even that is also covered with the involucre. And उसके margin पे there are nectar glands which are present, जो insects को attract करेंगे for the pollination. So this is the peduncle, my dear students. ये पेडिसिल नहीं है, ये पेडंकल है. और ये बहुत सारे फ्लावर्स, पेडिसिलेट फ्लावर्स, यहाँ पे मेल फ्लावर्स, सेंटर में मेच्योर फ्लावर्स है. ओके, सेंटर में मेच्योर फ्लावर्स है, पेरीफेरी में यंग फ्लावर्स है. एंड उसके मतलब मेल फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस के बीच में से फीमेल फ्लावर का पेडिसिल बाहर निकल रहा है, जिसमें 3 कार्पल्स अटैच्ड है. मतलब फीमेल फ्लावर का स्टॉक बाहर निकल रहा है एंड द स्टॉक इज हैविंग अ फीमेल फ्लावर व्हिच इज कवर्ड विद द इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट एंड दैट इज कंटेनिंग 3 कार्पल्स व्हिच आर फ्यूज्ड विद ईच अदर. वन, 2 and 3. यहाँ पे मेल फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. Can you see that? Yes, miss. And the nectar gland is present over here. Margin पे nectar gland present है. And these are not the true petals. These are the petal-like appendages. These are not the true petals. The entire inflorescence is achlamydeous. ये इनकी खासियत है. The entire inflorescence is achlamydeous. यानी कि without petals and without sepals. I hope everyone is clear with the chythium. Miss, हाँ बेटा. Miss, what is the meaning of syncarpus? Can you please tell again? Yes, of course. Carpels are fused.
Tricarpellary, 3 carpels. 3 carpels beta, 3 stigma, 3 style, 3 ovaries. Okay, सारे पूरा 3 carpel. Each carpel is made up of stigma, style and ovary. Okay, syncarpus का मतलब carpels are fused. Achlamydius का मतलब without petals and without sepals. मिस कॉर्पोरेट मेल फ्लावर्स मतलब स्कॉर्पियोइड वो स्कॉर्पियोइड हमने अरेंजमेंट देखा था ना जिगजैग मैनर में. हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी वैसे ही है ना, सेंटर में मैच्योर है और पेरीफेरी में यंग है. काइमोस टाइप का है ना, यस मिस काइमोस टाइप के जैसा अरेंजमेंट दिया है. सेंटर में मेल फ्लावर्स जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर है, ओल्ड है, और पेरीफेरी में जो है वो यंग है. तो इट इज अ काइमोस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. स्कॉर्पियोइड काइमोस में आता है. I hope everyone is clear with the first special inflorescence. Yes, miss. Okay, suppose हाँ, okay. Suppose अगर आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, आप आंसर दे पाओगे? दो मैं क्वेश्चन दो पक्का? के लिए मैं डायग्राम निकाल दूंगी. I am removing the diagram. I will not show the diagram. Sorry, no. वरना डायग्राम के सपोर्ट में आप आंसर दे दोगे. ओके, क्वेश्चन ये है, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन. आई जस्ट वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ यू ऑल. Acaithium has 37 inflorescence. What is the ratio of between number of microsporophylls and megasporophylls? माइक्रोस्पोरोफिल अगर पता नहीं है, मेल. मेगास्पोरोफिल, फीमेल. Can you give me the answer for this? कैसे निकालोगे आंसर? सॉरी, एनीवन? मैं सॉल्व करके दिखाऊं? मैं सॉल्व करूं? 1 minute. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. आपको मैंने क्या दिया है? 37 इनफ्लोरेसेंस. आपसे मैंने क्या पूछा? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स? आपको पता है ना, 1 मेल फ्लावर यानी कि 1 स्टेमन. मैंने अभी आपको LS दिखाया. 1 मेल फ्लावर यानी कि 1 स्टेमन, 1 एंथर एंड फिलामेंट, उसको 1 मेल फ्लावर कहते हैं. रिदा, गाइस, male flower has what? Stamen. Correct? One stamen has what? One stamen has 1 anther plus 1 filament. Am I right? Correct? अगर 37 इनफ्लोरेसेंस दी है तो मेल कितना होगा? 37 इनफ्लोरेसेंस दी है. एक इनफ्लोरेसेंस में फीमेल का इनफ्लोरेसेंस कितना होता है? 1. एक पूरा काइथियम में फीमेल का, हाँ, 1 फीमेल होती है. एग्जैक्टली 1 फीमेल होता है.
राइट? हेलो, यस मैम। Yes. तो अगर मैंने आपको 37 फ्लावर्स दिए, मतलब 30, एक मिनट, इनफ्लोरेसेंस लिखूंगी आप पागल हो जाओगे। ओके, 37 फ्लावर्स दिए, चलो 37 फ्लावर्स है, अब ठीक है। ओके, 37 फ्लावर्स है। 37 फ्लावर्स में से आपको मुझे रेशियो बताना है मेल और फीमेल का। मेल के 37 फ्लावर में से फीमेल का कितना है? एक। आपने देखा ना, सिंगल एक पेडिसिल बाहर निकलता है फीमेल का, सो देयर इज वन फीमेल फ्लावर। सो आउट ऑफ 37, आउट ऑफ 37, आउट ऑफ 37 फीमेल फ्लावर्स कितने हैं? 1। एंड मेल फ्लावर्स कितना है? 36। यस, मेल फ्लावर 36 है। अभी रुको, एक फीमेल फ्लावर में, एक फीमेल फ्लावर में कार्पल्स कितने हैं? 3 3. एक फीमेल फ्लावर में कार्पल्स कितने हैं? एग्जैक्टली 3 मेगास्पोरोफिल। एक फीमेल फ्लावर में 3 मेगास्पोरोफिल है। सो व्हाट इज द रेशियो नाउ? 36:3, that is equal to 12:1. This is the ratio. यस। One male flower has 1 microsporophyll, but one female flower has 3 megasporophyll. Now there are 3 carpels in one female flower. मैंने काइथियम का जो इन्फ्लोरेसेंस दिखाया उस पे मैंने आपको कंपलसरी दिखाया कि फीमेल में 3 कार्पल्स फ्यूज होते हैं। वन सिंगल फीमेल फ्लावर में 3 कार्पल्स फ्यूज होते हैं, एंड दैट इज सराउंडेड बाय इंडिविजुअल मेल फ्लावर्स। एंड इंडिविजुअल मेल फ्लावर में एक ही मतलब एक एक मेल फ्लावर में एक एक स्टेमन होता है। तो अगर 37 टोटल फ्लावर्स है, तो आउट ऑफ दैट 36 फ्लावर्स विल बी ऑफ मेल, राइट? दैट इज 36 माइक्रोस्पोरोफिल, 36 male flowers with 36 stamen, okay, and one female flower is there, but in that one female flower there are 3 carpels which are present, right? So 3 megasporophyll. So what is the ratio of microsporophyll and megasporophyll? 36:3, that is equal to 12:1. Is that clear? Now I am asking to every single person. Yes, miss. every Yes, ma'am. एक और चलो, अब आप खुद से, हाँ, अब आप नो चीटिंग, आप खुद से करोगे ना? कर लोगे? चलो, क्वेश्चन। ओके, estimate ratio of male and female flowers in a twig of euphorbia if total number of microsporophyll megasporophyll in that twig are 330 respectively. स्टार्ट करो। मैंने आपसे क्या पूछे? एस्टिमेट व्हाट? एस्टिमेट द रेशियो ऑफ male and female flowers in a twig of a euphorbia if the total number of microsporophyll and megasporophyll in that twig are 330.
सिमरन, सिमरन, Yes, ma'am. हाँ बेटा किधर हो आप? No, ma'am, because my phone is charging, no, so that's why it is very hot, so I can't अरे बाप रे, catch it. ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आराम से, समझ में आ रहा है ना बच्चा? Yes, ma'am. ओके, हाँ ओके ओके. You have to estimate yes, you have to estimate a ratio of male and female flowers in a twig of euphorbia. मैम मैंने आपको आंसर भेजा, आप एक बार चेक कर सकते हो? अरे मेरा चैट बॉक्स ही ओपन नहीं हो रहा. I have to stop the sharing then. हाँ अभी खुला. कोमल, गलत है मैम. नहीं ऐसे किया मैंने, ऐसे. मैम आप 1 मिनट आप. अच्छा इब्राहिम, राइट. जील जील थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, फिर से चेक करो बच्चा. हाँ हाँ सानिया, हाँ हाँ सानिया, उसको और रिड्यूस करो. सानिया उसको और रिड्यूस करो बच्चा. नहीं रिदा, 9 कैसे आया? रिदा, सानिया जो आंसर भेजा ना उसको और रिड्यूस करना. किधर है ये लड़की? हाँ वेरी गुड सानिया, वेरी गुड. नो नो किरण, नो 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 अर्शित, नो नो नो. यस दिव्या यू आर राइट, यस दिव्या यू आर राइट, दिव्या यू आर राइट. स्वरा नहीं बच्चा, नो नो स्वरा, नो नो स्वरा. यस मोहम्मद यू आर राइट. दीक्षा यू आर ऑल्सो राइट. वैष्णवी गडबड झाली रे बाबा मुलगी. आरुषा फिर से रेशियो चेक कर. आरुषा, आरुषा फिर से रेशियो चेक करो. किरण नहीं नहीं, किरण नहीं नहीं, नो नो, फिर से चेक कर, फिर से चेक कर. ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर किरण. श्रेया आपका आंसर नहीं आया मेरे पास. श्रेया वालवलकर यू आर राइट. श्रेया यस मैम. सोचो सोचो सोचो. मैम मेरे को आया 30:1. हाँ तो टाइप करने का ना, आंसर बोलने का नहीं हाँ, होता मैम. है. चलो ठीक है. यस द आंसर इज 30:1. जिसको नहीं आया उसके लिए सॉल्विंग करके देखते हैं. माइक्रोस्पोरोफिल कितना दिया है मैंने? यस माइक्रो कितना दिया है मैंने? 300. माइक्रोस्पोरोफिल 300, यानी कि टोटल 300 मेल फ्लावर्स, बिकॉज ईच मेल फ्लावर हैज ईच माइक्रोस्पोरोफिल. बरोबर, तो 300 है तो 300 फ्लावर्स हो गए. अभी मेगा स्पोरोफिल कितना दिया है मैंने? 30. बराबर है, लेकिन ईच 30 मेगा स्पोरोफिल को हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या एस्टिमेट करने बोला है? हमको एस्टिमेट करने बोला है नंबर ऑफ फ्लावर्स, राइट? तो हम इसको 3 से डिवाइड, बिकॉज ईच फीमेल फ्लावर में 3 मेगा स्पोरोफिल है. हेलो, इन ईच फीमेल फ्लावर देयर आर 3 मेगा स्पोरोफिल. सो 30:3 करना है, तो ये कितना आएगा? 10. तो ये हो गया आपका 10 फीमेल फ्लावर. बरोबर, तो रेशियो क्या निकला आपका? 300:10. निकला 300:10. दैट इज इक्वल टू 30:1. क्लियर किरण? एवरीवन? मैंने इसको हर्षित समझा? पवनी, स्वरा, रुजाला? मिस मैंने मेगास्पोरोफिल को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर. इसलिए मैं सोची तेरा नंबर उल्टा कैसे आ गया. चलो ठीक है. नहीं अच्छा, अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो एक काम करो, काइथियम इन्फ्लोरेसेंस जहां पे लिखा है ना
वहां पर सब लोग ऊपर बॉक्स में लिख दो, सब लोग ऊपर है ना बॉक्स में लिख दो, बॉक्स में डाल के लिखो one female flower has 3 मेगास्पोरोफिल, बस ऐसा लिख दो। तो क्या हो जाएगा, इससे आपको याद रहेगा कि हाँ एक फीमेल फ्लावर में 3 मेगास्पोरोफिल। और मैंने लिखा है एक्चुअली यहाँ पे ट्राई कार्पोलरी, बट यू गाइज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि फ्लावर्स का स्ट्रक्चर हुआ नहीं, तो फिर ठीक है। One female flower has 3 मेगास्पोरोफिल and one male flower has 1 माइक्रोस्पोरोफिल, ये याद रखो। तो ये याद रह जाएगा, आपको सॉल्विंग करने में इजी हो जाएगा। आगे बढ़े। Yes, miss. ओके, स्पेशल इनफ्लोरेसेंस में व्हाट इज द टाइम? चलो स्पेशल इनफ्लोरेसेंस में अब आते हैं हम लोग वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर टंग ट्विस्टर जैसा लगता है। वर्टिसिलेस्टर इनफ्लोरेसेंस बिगिन एज 2 dichasial kind. Inflorescence begin as 2 dichasial kind, born in the axil of 2 opposite leaves present on the single node. Public, क्या हो गया? कंफ्यूजन? सिंपल है। सपोज मैं ये एक्सिस ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, अब यहां पर एक फ्लावर है, बराबर। तो अब यहां से ब्रांच निकला, बराबर है, यहां पे ब्रैक्ट है। अब यहां से एक और ब्रांच निकला, ब्रैक्ट है, ठीक है। सो पहले फ्लावर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये पता चला इनफ्लोरेसेंस इज बिगिनिंग एज अ 2 dichasial kind। गाइस मैंने 2 dichasial kind ड्रॉ किया, एक इस तरफ एक इस तरफ, 2 dichasial kind born in the axil of 2 opposite leaves present on the single node. Now later on this dichasial kind changes into monochasial। ये देखो ना, नहीं समझा? गाइस ये आपका मेन एक्सिस है, बराबर। ये डाइचेजियल का ब्रांच है, मैं डाई लिख रही हूं, ये डाइचेजियल के ब्रांच है। दो बनाते हैं ना, डाइचेजियल में 2 ब्रांच होता है। लेकिन अब डाइचेजियल देखो मोनो बना रहा है, हेलो, अब डाइचेजियल मोनो बना रहा है, सिंगल ब्रांच बना रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेटर ऑन द dichasial kind changes into monochasial, forming a false wall around the node. So ऐसा लगता है कि एक ही सिंगल नोड पे बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे वॉल बना रहे, बट एक्चुअली इट्स अ फॉल्स वन, राइट? और अभी ऐसा ही नीचे के नोड पे भी होगा, ऐसे ही सेम अरेंजमेंट नीचे के नोड पे होगा। ये अपसाइड डाउन होता है मैम? नहीं, ये दूसरे नोड का ड्रॉ कर रही हूँ बच्चा। ओके। इट इज नॉट
मुझे बहुत मजा आता है जब बच्चे ऐसा पूछते हैं ना। हर बार वर्टिसिलिस से जब भी पढ़ाते ना बच्चे ही पूछते हैं, मिस ये मिरर इमेज है क्या, ऐसा ऑपोजिट जाता है क्या? मैंने नहीं बाबा, ऑपोजिट नहीं, मैं आपको दूसरे नोड का डायग्राम दिखा रही हूँ। तो बच्चा लोग क्या बोलते हैं उसको, द स्पेस बिटवीन दिस इज, हाँ ये इंटरनोड रीजन है, दिस इज इंटरनोड रीजन, ये नोड पे बन रहा है, समझ रहे हो? अंडरस्टूड? मैं दिखा देती हूँ बेस्ट एग्जांपल, salvia, sage, it's a herbaceous sage, people use it a lot for eating, for detoxing their body. ऑसीमम तो सबको पता है, बेसिल, तुलसी, आज लगता है सब लोग अपने घर में तुलसी का प्लांट देखेंगे, फ्लावर ग्रो होगा तो जरूर देखेंगे. Okay, so basically it is a characteristic feature of the family Lamiaceae or Labiata. Lamiaceae or Labiata. You can see this verticillister. See, this is one verticillister, second, third. दिख रहा है रिदा? तो बस मैंने एक्चुअली यहाँ पे दो वर्टिसिलिस्टर ड्रॉ करके दिखा है. तो बच्चा, दिस एंटायर इज कंसिडर्ड टू बी द इनफ्लोरेसेंस. यू कैन कंसिडर दिस एज अ सिंगल फ्लावर, क्योंकि एक ही नोड पे बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो हुए ना, वैसे. Got it? Salvia. या देख लो इसकी खूबसूरती देख लो. हमें 12th में ये फ्लावर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, साल्विया के बारे में. Lot of things we are going to study about salvia in 12th standard. Reproduction in flowering plants में. It's beautiful flower. Guys, did you understand? Yes. मतलब पहले मेन एक्सिस से डाइफेसियल काइम बनाया. Each branches terminating with the flowers, and then फिर dichasal monochasal बन गया. Even that is also terminating with the flower, and so it is looking like a false wall. देखो ना, ऐसे ही लग रहा ना कि गोलाकार में फ्लावर अरेंज्ड है. मतलब हमें लगता है कि पूरा एक फ्लावर है, बट एक्चुअली वो पूरा एक फ्लावर नहीं है. इट इज मेड अप ऑफ मेनी फ्लावर्स, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स उसके ऊपर अटैच्ड है. तो इट इज एंटायर इनफ्लोरेसेंस. वैसा समझ रहे हो? यस. चलो बढ़िया, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, hypanthodium. I don't like this. Peduncle becomes into. एक सेकंड, आप प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं? Yeah, sure. Done, ma'am. I'm done. हाँ बच्चों, hypanthodium, peduncle modified into deep fleshy cup. सोचना भी मत, सोच के एकदम परे है ये, एकदम हटके है ये. peduncle is modified fleshy. हाँ सॉरी, व्हाट, क्या बोल रहे? कुछ तो बोले हीर तुम. कुछ तो बोले. मैं बोली कि अच्छा नहीं दिखेगा शायद. नहीं, अच्छा दिखेगा. Many of you will love it. Okay, peduncle is modified into deep fleshy cup, and there are many sessile flowers arranged irregularly. चलो अंदाजा आ ही गया होगा मैं किसके बारे में बता रही हूँ. Anyone? Who are the fruit lovers? Avocado. No. Papaya. Papaya है. Pear. Pomegranate. No. Pomegranate. ये कौन से तुमको pomegranate दिख रहा है? You guys are making me laugh. No, it is not papaya. It is fig. Anjir. Oh. Okay, चलो. Many sessile flowers are arranged irregularly. ध्यान से देखो. Male flowers are near the opening. Guys, male flowers are near the opening. ये opening है. Yeah, this is the opening. ये साइड का ओपनिंग होता है. ये जो ओपनिंग है ना, इसको एक्चुअली ऑस्टियोल कहते हैं. ऑस्टियोल. तो मेल फ्लावर्स आर नियर द ओपनिंग ऑफ द इनफ्लोरेसेंस. Okay, with the proper anther and filament, that is stamen. Female flowers are at the bottom.
you can see that female flowers यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स नीचे की तरफ अरेंज्ड है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स है और यहाँ पे ऊपर की तरफ में मेल फ्लावर्स है. एंड सेंटर में ना, सेंटर में देयर आर स्टेराइल फ्लावर्स, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेटेड बाय स्टेराइल फ्लावर्स एंड दीज आर कॉल्ड एज गॉल फ्लावर्स. राइट. There is one insect called Blastophaga. Blastophaga lays egg in this gall flowers. वो अपने अंडे इस sterile gall flowers के वहां पे देते हैं. Okay, so the whole inflorescence becomes fruit after fertilization, and that is what you eat. And not that insect after laying the eggs. I mean without laying वाला eggs. पता चला कि आप सोच रहे होंगे मतलब अंजीर अब तक मैं अंडे वाला खा रहा था. No. It's meant that most of the time this insect actually feeds the sterile flower for laying its eggs. It becomes easy for it. Okay. Now this whole entire inflorescence will turn into fruit after fertilization. Best example, Ficus carica fig, Ficus religiosa people, banyan. Basically, it is a characteristic feature of inflorescence of genus Ficus. Genus Ficus का ये characteristic feature है ये Hypanthodium. Clear everyone? Male and female flower are separated by the sterile flowers, gall flowers. ठीक है. Last. मैम वो last slide पे जाओ. I've come to the last inflorescence and the topic is completed. I've come to the last inflorescence. Last. एकदम. मिस हाँ. मिस वो ब्लैक वाले पार्ट को ऑस्टियोल बोलते हैं. नहीं, मैंने देखना ऊपर ऐसा मरून कलर का ऐसा लाइन ड्रॉ किया है, देखना दिस. हाँ. ये ओपनिंग को ऑस्टियोल कहते हैं. ओके. हाँ बेटा, यहाँ से ना वो पॉलिनेशन करने में इजी हो जाता है बच्चा. यहाँ से इसलिए मेल फ्लावर्स देखो वहां पर अरेंज्ड है. दीक्षा, मेल फ्लावर्स इसलिए यहाँ पर अरेंज्ड है ताकि पॉलिनेशन करने में इजी हो, मतलब पोलिंग ग्रेन सारे यहाँ हो सके. हाँ. ओके. हाँ ठीक है, चलो बढ़िया. ना कोएनांथियम. चलो यार, इसको सूडोएंथियम बोल दो तो भी चलेगा, इसको सुडांथियम बोल दो तो भी चलेगा. सॉरी, दिस इज द ओनली इनफ्लोरेसेंस जिसका मैं कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकती. I can't draw it and show it to you. I just literally have to show you the flower. Its receptacle is saucer shape. Again, flat shape. Head जैसा ही है ये. Chymos head और racemose head पढ़ा ना हमने. Racemose head, capitulum, sunflower वाला. Chymos head भी पढ़ा हम लोगों ने. Chymos head में हमने किसका पढ़ा था? Acacia का फ्लावर पढ़ा था. और ये कदम्ब जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे. हाँ, तो ये इसमें ना रिसेप्टिकल सॉसर शेप का हो जाता है. सॉसर शेप एकदम फ्लैट, एकदम ऐसा गोला का डिस्क है. एंड हैज अ कर्व्ड मार्जिन कर्व्ड होता है. एंड इट बेयर्स फ्लावर्स इन अ सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ हाइपेंथोडियम. हाइपेंथोडियम अभी जस्ट गया, कैसा था अरेंजमेंट? मेल फ्लावर्स टू द पेरिफेरी एंड फीमेल फ्लावर्स इन द सेंटर. तो इसमें भी वैसे ही होता है. मेल फ्लावर्स आर एट द पेरिफेरी. मेल फ्लावर्स जो है ना वो मार्जिन पे है एंड फीमेल फ्लावर्स सेंटर में है. समझ रहे हो? ये जो डॉर्सेंटीनिया है, डॉर्सेंटीनिया इज द इट्स अ हर्बेशियस. मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आप चाहो तो आप लिख सकते हो. इट्स अ हर्बेशियस succulent perennial plant. Yes, it's a herbaceous succulent perennial plant and it has a woody habit. मतलब ये एक्चुअली है ना किसको बिलोंग करता है मैं आपको बताऊं. ये मलबरी के फैमिली को बिलोंग करता है. एंड यूजुअली जब हम लोग मलबरी के फैमिली को देखते हैं ना तो वी डोंट सी एनी प्लांट विद अ वुडी हैबिट. दिस इज द ओनली प्लांट विच इज हैविंग अ वुडी हैबिट. ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली प्लांट विच इज हैविंग अ वुडी हैबिट इन मलबरी फैमिली, डॉर्सेंटीनिया. और ये जो प्लांट है ना, दिस प्लांट इज पॉपुलरली नोन बिकॉज ऑफ इट्स इनफ्लोरेसेंस. ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑफ इट्स इनफ्लोरेसेंस इट इज पॉपुलरली नोन. मतलब इसका ये जो सुडांथियम है ना, मतलब इसका ये जो सॉसर शेप का जो रिसेप्टिकल है, दैट हैज डिफरेंट शेप्स. इट कैन बी प्लेनार,
it can be concave, it can be convex, it can be oval, it can be square, it can be a lobed twig or star shape और boot shape, कोई भी shape का हो सकता है. मतलब ये उसके inflorescence से पहचाना जाता है. You can see this. Look at this beautiful flower. It's not a flower. I'm sorry. It's an inflorescence. मैंने कहा ना, मैं इसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ. It is out of my imagination. Okay. Pseudanthium, a false inflorescence. Margins पे सारे मेल फ्लावर्स होते हैं एंड सेंटर में सारे फीमेल फ्लावर्स होते हैं. एंड ये जो सॉसर, यहाँ पे ये स्टार शेप का रिसेप्टिकल दिखाया है. स्टार शेप रिसेप्टिकल, लाइक या स्टार शेप pseudanthium. ओके. मार्जिन काफी कर्व्ड है और मार्जिन पे मेल फ्लावर्स हैं. Flower itself is succulent. Flower itself is succulent. Dorsentinium. Guys, I would like to end my inflorescence ka topic by saying this, that there are many inflorescence, there are many misconceptions about the inflorescence. I've completed the inflorescence. Our next journey is of flower, which we will see in the next week. I would like to end my topic by saying this कि बहुत सारे misconceptions हैं inflorescence को लेकर. Like certain inflorescence are misinterpreted. मतलब उसको interpret गलत तरीके से किया गया है. I mean they are interpreted as a flower, but actually वो flower नहीं है. Example के तौर पे cauliflower. People say it is a flower. It is not a flower. It is the entire inflorescence, right? Euphorbia. आपने Kythium देखा ना? Kythium, euphorbia. When the people see flower, they say, I mean, जब वो देखते हैं वो पूरा arrangement inflorescence का, they say it's a flower, but it is not a flower. It is the entire inflorescence. I just now explained you very nicely in a detail. फिर ये ले लो, ये अपना ये pseudanthium जो last वाला था. Even that was also an entire flower, but दिखने में वो लगता है कि एक ही flower, but it's actually an entire inflorescence. ऐसे बहुत सारे हैं. Sunflower ले लो. People think that sunflower is a flower, but it is not a flower. It is an inflorescence. So बहुत सारे misinterpretation हुए हैं inflorescence को लेकर, that people judge it in a wrong way. You don't make this wrong judgment when the question is asked. You know these are all inflorescence. Is that clear? ये single flower नहीं है, ये inflorescence है. It's an arrangement. It's a bunch of flowers. कदम्ब एक classic example मैंने लिया था Kaimo's head में. Yeah. So it's a bunch of flowers. Okay. That's it. Inflorescence खत्म. मजा आ गया. मतलब I was like, मुझे inflorescence पढ़ाते वक्त बहुत मजा आता है. I enjoy it. और मैंने कोशिश की कि मैं आपको हर छोटी छोटी चीजें बताऊं. So now I want everyone to go through this topic nicely. मैं अभी आज के आज ही शाम को वीडियो अपलोड कर देती हूँ. शांति से प्लीज बैठ के पूरा inflorescence स्टडी करो. And yes कोमल, मैं concept maps आज अपलोड कर दूंगी. ठीक है. Root, stem, leaf and of course inflorescence. And remember मेरे concept map में मैंने 4 अलग अलग बुक्स को रेफर करके and botanical dictionary को रेफर करके मैंने examples डाले हैं. तो मतलब मैंने वेरीफाई किया हुआ वो एग्जाम्पल और फिर मैंने अपने कॉन्सेप्ट मैप्स में डाले. तो इन केस अगर आपके बुक में भी वो कॉमन आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर अलग आ जाता है तो उसको सेव करके रखना. मतलब कैंसिल तो कुछ भी नहीं करना. अगर आपको कहीं पे किसी एग्जाम्पल पे डाउट आ रहा है कि मिस यहाँ पे ये बुक में ऐसा दिया ये एग्जाम्पल, तो क्या ये सही होगा क्या, तो आप मुझसे पहले पूछो. ठीक है. अगर आपको किसी एग्जाम्पल पे डाउट आ रहा है तो मुझसे पहले पूछना. अब मैं वेरीफाई करूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज बहुत गड़बड़ किया गया है. बहुत सारे बुक्स में अलग अलग एग्जाम्पल्स देके बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं. ओके. सो दैट शुड नॉट हैपन. चलो